Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Gemini Ascendant and see how the month of September 2022 is going to pan out for the Gemini Ascendant people. Let us first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mercury is going to pass through the fourth house in the month of September. This is an excellent position for Mercury because it is going to be stationed in its own house and it also happens to be the ascendant lord, so it will bring peace of mind and domestic happiness to you in the month of September. This ascendant lord is also going to get the beneficial aspect of Jupiter, and all those people who are related to the field of primary education or people who are planning to buy a property may benefit immensely in the month of September if they decide to act. All those people who have ascendant lord in the fourth house in the birth chart and gets aspected by a benefic like Jupiter or Venus, or the ascendant lord itself is a benefic like Jupiter and Venus, then it not only showcases a continuous peace of mind for these people throughout their life, but it also indicates that their old age will be very, very peaceful because the fourth house also shows the last stage of life. So, when you look at your birth chart and if you have an ascendant lord placed in the fourth house and is a benefic, then you can certainly count yourself as a blessed individual. As I said earlier, Jupiter in the 10th house aspecting 4th means you can plan for buying a property or any immovable asset. Jupiter's 5th aspect is also going to be on the second house, which means you would also see a desired cash flow in the month of September. For Gemini ascendant people, Jupiter owns the 7th house of business, and the 7th house lord passing through the 10th house indicates a very good position for people who are in their own business. Now let us look at Mars. Mars is passing through the 12th house and is going to aspect its own house of health, debt, and service. So, people who are in service will see a very good time at the workplace as both the Mars through its 7th aspect and Jupiter through its 9th aspect are looking at the 6th house. And Jupiter's aspect also means that it will protect you from any kind of an ill health in the month of September. Now let us also look at Venus. Venus is the lord of 5th house and 12th house. For Gemini ascendant, Venus is going to pass through the third house till 23rd of September and will be aspected by Mars through the fourth aspect. So if you take a short term travel before 23rd of September, it will prove to be very, very enjoyable. Fifth house has the Ketu posited in it and it will continue to drag the students away from studies. The job of Ketu is to cut off people from the significations where it is stationed, and in this case it happens to be studies for students and other creative activities, even including speculation. Students will feel cut off from their karma, which is to study, and all the speculators will also find it very, very hard to make money. To appease this Ketu, try feeding a black dog every Wednesday to avoid its malefic influence as well as to protect your intellect and your progeny. Rahu is passing through the 11th house. It means you need to be careful when dealing with friends or social circle because Rahu's placement here would showcase betrayal by your friends or even by your social network. And one should have the ability to recognize the people who are your actual friends versus those who are just sticking around for some benefit. You should also shun any kind of a monetary dealings with your friends in the month of September. Otherwise, it may bring some kind of a harm to you. Let us also look at Saturn. Saturn will continue to occupy its Capricorn sign till January 23. And since 8th Lord is passing through the 8th house, it is always suggested for Gemini ascendant people to make sure that whatever decisions they are taking, unless and until they verify all the data and facts, they should not take that decision. So one has to get into a researcher kind of a mode, verify every evidence in front of them, and only then take a decision. Now there are also certain dates when person needs to be careful. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house. So for Gemini ascendant, these days in September are 3rd and 4th September, 7th and 8th September,
16th and 17th September and 30th of September. So overall, this is going to be a beneficial month for Gemini Ascendant people. The Ascendant Lord in fourth house itself ensures peace of mind, and that is something which most of the individuals are looking for continuously in their life. So this is the summary for Gemini Ascendant people. If you have liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिथुन लग्न के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसे साबित होगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश बुध चतुर्थ भाव से भ्रमण करेंगे सितंबर महीने के दौरान। चतुर्थ भाव आपके घर की समृद्धि को, आपके घर में मिलने वाले सुख को, माता को, आपकी मानसिक शांति को दिखाता है। ये इसके अलावा जो भी आप प्रॉपर्टी या मकान खरीदते हैं उसके सुख को और व्हीकल्स को भी दिखाता है। तो चूंकि लग्नेश ही चतुर्थ भाव से गुजर रहे हैं और इनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा समय होगा मिथुन लग्न वालों के लिए, क्योंकि उनको मानसिक शांति पूरे सितंबर महीने के दौरान मिलती रहेगी। जब भी कभी कोई भी ग्रह अगर वो लग्नेश है और वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको स्वयं की जन्म कुंडली में मिलता है, तो आप मान लीजिए कि आप बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति है। क्योंकि अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है, यानी कि गुरु है, शुक्र है, या मिथुन लग्न वालों के लिए बुध भी बेनिफिक प्लैनेट ही कहलाएगा, क्योंकि वो स्वयं लग्न का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। दो केंद्रों का स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर यह आपके जन्म कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो आपको ना सिर्फ मानसिक सुख मिलता रहेगा, लेकिन आपका बुढ़ापे में भी आपको बहुत अच्छा आपका बीतेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका लास्ट स्टेज दिखाता है जीवन की। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो और भी अच्छा है, लेकिन सितंबर का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए मानसिक शांति लेके आएगा। जैसा मैंने पहले बताया था, गुरु की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, व्हीकल्स लेना चाहते हैं, तो भी आप इस समय प्लान कर सकते हैं। जुपिटर की पांचवी दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी। तो जो भी लोगों को कैश फ्लो आने की उम्मीद है, उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छा रहेगा। गुरु जिस भी भाव को देखता है वहां पे उस भाव को वो प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे पंचम दृष्टि उसकी कर्क राशि पर पड़ेगी, जहाँ पे कि गुरु उच्च का होता है। तो ये कैश फ्लो के लिहाज से भी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। गुरु सप्तम और दशम भाव का स्वामी होता है मिथुन लग्न के लिए। तो सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठना खुद की राशि में, यानी कि जितने भी लोगों का स्वयं का व्यापार है, व्यवसाय है, वो भी सितंबर के महीने में अच्छा समय देखेंगे। मंगल 12वें भाव से गुजर रहे हैं और स्वयं के घर को देखेंगे, छठे भाव को, जो कि व्यक्ति की सेहत को दिखलाता है, सर्विस को दिखलाता है, शत्रुओं को दिखलाता है, और किसी भी तरह का वाद विवाद, लिटिगेशन जो होता है कोर्ट कचहरी, उसको भी दिखाता है। यहाँ पे मंगल का अपने ही भाव को देखना बहुत अच्छा कहलाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव को देखता है तो वो उस भाव को मजबूत बनाता है। यहाँ पर फायदेमंद बात यह हो रही है कि गुरु की भी नवी दृष्टि छठवें भाव पे पड़ रही है। तो व्यक्ति के छठवें भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का गुरु संरक्षण करेगा, यानी व्यक्ति की सेहत को बहुत अच्छी रखेगा सितंबर के महीने में। मंगल भी देख रहा है सातवीं दृष्टि से, तो व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी सितंबर के महीने में। शुक्र पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मिथुन लग्न के लिए। ये शुक्र अभी तृतीय भाव से गुजरेंगे सितंबर के महीने में 23 सितंबर तक, और मंगल की भी चौथी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। तो जितने भी लोग अगर शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, मौज मस्ती के लिए छुट्टियां लेना चाहते हैं, तो ये बहुत इंजॉयबल आपके लिए ट्रिप रहेगा अगर आप 23 सितंबर के पहले लेते हैं तो। और यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। तो केतु जहाँ पर भी बैठता है उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से व्यक्ति को विरक्त करने का काम करता है। तो पंचम भाव से विद्या आती है, तो स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनको लगेगा ये पढ़ लिख के क्या कोई फायदा नहीं है, उस तरह के ख्याल उनके दिमाग में आएंगे। और जितने भी लोग पंचम भाव से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटर्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय मुश्किल रहेगा, क्योंकि केतु उनके काम में विरक्ति लाने का प्रयत्न करेगा, व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और बुध
की राशि होने की वजह से मिथुन लग्न के लोगों में भी व्यापारी प्रवृत्ति होती है, और व्यापारी प्रवृत्ति मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाती है। तो ये फिर से जो व्यक्ति का नेचर है उसके अगेंस्ट जाने वाली बात हो जाती है, जिसकी वजह से फिर व्यक्ति सफर करने लगता है। तो ये केतु का एक अच्छा उपाय होता है कि या तो आप काला कुत्ता पाल के उसको आप खाना तो खिलाएंगे अगर आप उसको पालेंगे तो, नहीं तो बाहर कहीं काले रंग के कुत्ते को हर बुधवार को खाना खिलाइए, जिससे कि एक केतु के काफी हद तक दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष में केतु स्वयं ही कुत्ते का कारक होता है या प्रतीक होता है। राहु 11वें भाव से गुजर रहा है। वैसे तो राहु 11वें भाव में भाव स्थिति से बहुत अच्छा कहलाता है, लेकिन अगर वो मिथुन राशि में बैठा हो तो यहाँ पर ये मंगल की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए अग्रेशन लाने का काम करता है। जब भी आप कभी दोस्तों से या सोशल नेटवर्क में जा रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिए। यहाँ का राहु जन्म कुंडली में हमेशा दोस्तों से धोखाधड़ी दिखलाता है। आपको कोई चीट करके जाता है आपके दोस्तों में से, और व्यक्ति को उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो यहाँ पे अपने दोस्तों को अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए राहु जब तक यहाँ बैठा हुआ है तब तक, और ध्यान रखिए कि आप उनसे कोई धोखा ना खाएं इस समय में। और किसी भी तरह का पैसों का लेन देन मत कीजिए, ना अपने सोशल नेटवर्क से ना अपने दोस्तों के साथ। दोस्ती को अलग रखिए, पैसों को अलग रखिए। एक नज़र शनि पे डालते हैं। शनि यहाँ पर अष्टम भाव से गुजर रहे हैं और अभी वक्री चल रहे हैं 22 अक्टूबर तक। शनि यहाँ पे जनवरी 2023 तक बैठे रहेंगे। तो अष्टम भाव का अष्टमेश से ही गुजरना, यानी कि व्यक्ति को निर्णय लेने चाहिए तब जब उसके पास सारे के सारे फैक्ट्स और फिगर्स उनके सामने हो। तो अगर आप एक रिसर्चर की प्रवृत्ति अपनाते हैं, यानी कि कोई निर्णय तब तक नहीं लेंगे जब तक आपके सामने सारे फैक्ट्स नहीं आ जाते, सच नहीं आ जाता, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि शनि तो कर्म का कारक है, तो और वो चाहता है कि आप निर्णय लें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के बाद। अब महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ये दिन वो होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12वें भाव से गुजरता है। इन दिनों में व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के निर्णय लिए हुए गलत हो जाते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ज्योतिषी हैं तो भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो जब आपका स्वयं का चंद्र 6, 8, 12 से गुजर रहा हो तब आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, वो कई बार गलत साबित होता है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए सितंबर के दिन हैं 3 और 4 सितंबर, 7 और 8 सितंबर, 16 और 17 सितंबर और 30 सितंबर। इन दिनों में सावधान रहिएगा। कुल मिला के ये महीना बहुत अच्छा निकलेगा मिथुन लग्न वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना और गुरु की दृष्टि उस पर पड़ना, यानी कि मानसिक शांति मिलना, जो कि आज के युग में सारे ही लोग तलाश रहे हैं। तो ये समरी है आपकी सितंबर महीने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।